Hello student. Today we will start with standard 8 social science chapter number 1 arrival of Europeans in India. Lesson 1 arrival of Europeans in India. In this chapter we will study about how different merchants from various European countries came India for trading purpose. For example, Portuguese, Dutch, British and French. In this chapter we will study that how they were attracted with Indian commodities and how they traded with India. In this chapter we will even study about the British who came in India for the purpose of trading, and slowly from trader they became the superpower, means they started ruling India, and that is after two successful battles, that is battle of Plassey and battle of Buxar. In this chapter I have already noted few important dates यानी year जिसको हम हिस्ट्री में इवेंट्स भी बोलते हैं. So these are the important events which you have to learn properly. I have already noted these events. I will start the explanation of your book, page number 1. In this, the second paragraph, in which they are explaining you about how different merchants from various countries came to India to trade. Different merchants came from north and west part to India with the help of the land route. यानी पहले वो लोग लैंड रूट से यहाँ पे ट्रेड करते थे, जिसमें अरब ट्रेडर्स ने काफ़ी सालों तक लैंड रूट यूज़ करके हमारे साथ ट्रेडिंग किया है. बट कॉन्सिक्वेंटली यूरोपियन कंट्रीज में कुछ पार्ट में लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया गया था. ऐसे माना जाता है कि जो टर्किश मुस्लिम थी, जब उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे इन ईयर 1453 को कॉन्कर किया तो उन्होंने लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया था. तब काफ़ी यूरोपियंस को लगा कि उन्हें कुछ डिफरेंट रूट ढूंढना पड़ेगा, और उन्होंने सोचा कि हमें सी रूट ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम इंडिया में जाएं. अब इंडिया में ऐसे तो क्या था कि वो लोग काफ़ी अट्रैक्टेड थे. दूसरी वैसे कौन सी कमोडिटी थी जो उनके यूरोपियन मार्केट में काफ़ी डिमांड में थी और उनको काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रही थी. दैट कमोडिटीज़ वर लाइक सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलिन, ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस which were in great demand from India and which they used to get at very cheap rate. उन्हें ये सारे रॉ मटेरियल they used to get at cheap rate and they used to take with them to their country and sell it to other European country at the high rate, जिसमें वो लोग काफ़ी प्रॉफिट अर्न करते थे. पेज नंबर 2. Now they have decided many European countries that they should search for the sea. सबसे पहले कोशिश की थी इटालियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. He was a brave sailor who ventured sea route to find India, but accidentally he landed up to America. As long as he lived, he was under misconception that he had found India, but unfortunately he had landed to America. Hence, even today, natives of America are called Red Indians, and the island group in the Caribbean is known as West Indies. So, he was the first person to start this venture, but he unluckily failed. Second was a Portuguese sailor. His name was Vasco da Gama. He came to India in year 1498. He discovered a sea route to India. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached to the port of Calicut on 22nd May 1498. When he landed India in the part of Calicut, the king ruling in Calicut was Zenobia. He asked for the permission of trade and Portuguese got the trading permission from Calicut. So we can say कि सबसे पहले यूरोपियन कंट्री जो इंडिया में ट्रेड करने आए थे वो थे पोर्चुगीज. He was the first European country to start their trade was Portuguese. Portuguese established a fort. उन्होंने कैलीकट में एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया 1500.
वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले फोर्ट एस्टैब्लिश किया, फोर्ट को फोर्टिफाइड किया। फोर्टिफाइड यानी कि चारों तरफ से ह्यूज वॉल बिल्डअप कर देना जहाँ से कोई और उनके ऊपर अटैक ना करे। और एक कमांडर उनका अपॉइंट किया जिसका नाम था एल्बुकेर्क। ये कमांडर ने गोवा में एक फोर्ट बिल्ड किया 1506। और वैसे पोर्चुगीज को ट्रेडिंग सेंटर्स मिले मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, Mumbai and island of Nampur. But unfortunately, Portuguese rule came to the end. Page number 2, last paragraph, how end of Portuguese rule came. In the beginning of 17th century, Portuguese had expanded their trade to Bengal. Bengal तक वो पहुँच गए थे. But till that time, Mughal Emperor शाहजहाँ was ruling. उस वक्त मुगल राजा थे शाहजहाँ. शाहजहाँ के सूबेदार ने कंप्लेन किया कि पोर्चुगीज के कोई ऑफिसर मिसबिहेव कर रहे हैं, तो शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया कि उनके जो फोर्ट है हुगली में उसको डिमोलिश यानी कि तोड़ दिया जाए और उनकी जितनी भी शिप थी उनको बर्न किया जाए। इस तरह से पोर्चुगीज का ट्रेडिंग सेंटर एंड हो गया और उनको सिर्फ दीव, दमन और गोवा इतनी ही टेरिटरीज दी। अब हम आते हैं डच के पास, जिसने यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर किया 1663। After 100 years arrival of Portuguese in the end of 16th century, Dutch of Holland, जिसको आज हम नीदरलैंड बोलते हैं, came to India for trading. Initially उन्होंने उनका फोर्ट एस्टैब्लिश किया था at Pulicat, Madras. After that they established their trading center. That was the main trading center at Agra in 1663. इसलिए मैंने ये ईयर को हाईलाइट किया। Meanwhile ब्रिटिश भी यहाँ पे अराइव हो गया और डच कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट ब्रिटिश। मीनवाइल ब्रिटिश आ चुका था, डच यहाँ पे इतने ट्रेडिंग सेंटर्स नहीं क्रिएट कर पाया तो उसका वहीं पर एंड हुआ। बट पोर्चुगीज के पास अभी भी 3 मेन सेंटर्स थे ट्रेडिंग के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ब्रिटिश। ब्रिटिश यहाँ पे 16th सेंचुरी में उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, ईस्ट इंडिया कंपनी, विद अ ग्रुप ऑफ वेरियस मर्चेंट। उस वक्त इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने एक चार्टर साइन करवाया। चार्टर यानी कि एक डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम जब वहाँ पे ट्रेड करने जाए तो हमारे अलावा ईस्ट से कोई और दूसरी कंपनी ट्रेड करने के लिए नहीं जाए, जिससे जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑलरेडी उनको मिले। पर उनको पता नहीं था कि पोर्चुगीज तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। चार्टर साइन हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया कि वो इंडिया में आके ट्रेडिंग करें। सो द फर्स्ट शिप जो यहाँ पे अराइव हुई थी वो 1608 में इंडिया में अराइव हुई थी और उसके कैप्टन थे सर हॉकिंस, कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस, वो उनके कैप्टन थे। उस वक्त दिल्ली के जो मुगल एम्परर थे वो थे जहांगीर, पर उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। उसके बाद दूसरे कैप्टन आए जिसका नाम था सर थॉमस और उन्होंने जहांगीर से परमिशन लिया और सूरत में ट्रेडिंग सेंटर छोटा सा शुरू किया। फिर उसके बाद शाहजहाँ रूलर बने और शाहजहाँ ने ब्रिटिशर को परमिशन दिया बंगाल में ट्रेड करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे आए फ्रेंच। ये जो फ्रेंच थे वो काफ़ी टफ राइवलरी हुए थे ब्रिटिश की। उन्होंने उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की थी 1664। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में काफ़ी वॉर्स हुए थे, 3 या 4 कर्नाटिक फ्रेंच वॉर्स बोलते हुए अल्टीमेटली फ्रेंच भी हार गया था और ब्रिटिश की ट्रेडिंग सेंटर काफ़ी एक्सपांड हो गए। फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1664। उन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की सूरत, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी। उनके हेड कंपनी के थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, जो चाहते थे कि फ्रेंच रूल इंडिया में एक्सपांड हो, पर ब्रिटिश के सामने वो नहीं टिक पाए बिकॉज ब्रिटिश वॉज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट कंपीटर। और इस तरह से उनको सिर्फ 3 सेंटर्स मिले, पुडुचेरी में और चंद्रनगर, जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे थे। अब ब्रिटिश को ट्रेड करने को मिला बंगाल में, जिससे वो बने सुपर पावर। जब उनको ट्रेडिंग मिला बंगाल में, फर्स्ट ट्रेड इन बंगाल उन्होंने शुरू किया 1651। तब इंडिया में मुगल रूलर औरंगजेब थे। औरंगजेब से उन्होंने एक फरमान मांगा। फरमान होता है एक रॉयल ऑर्डर,
जिसमें उन्होंने ये मांगा कि वो जो भी यहाँ पे ट्रेड करे उसमें वो कोई भी टैक्स नहीं पे करेगी, दैट इज ड्यूटी फ्री ट्रेड। और औरंगजेब ने वो फरमान साइन करके दे दिया, जिससे ब्रिटिशर को काफ़ी फायदा हुआ, पर बंगाल को काफ़ी हार्म हुआ। उनकी जो भी रेवेन्यू थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब बंगाल में नवाब होते थे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग संभालते थे। बाय द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मनी अर्न करने लगा और वो काफ़ी ट्रेडिंग सेंटर्स बिल्ड करने लगा। कंपनी को बेनिफिट्स मिलने लगा टैक्स फ्री ट्रेडिंग से। काफ़ी ऑफिसर्स थे जो ब्रिटिशर के, वो कंपनी के अंडर तो ट्रेड कर रहे थे पर अपने प्राइवेट सेंटर से भी ट्रेड करते, जिसमें भी वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल का जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें काफ़ी रिडक्शन आने लगा, जिससे बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपोज किया, जैसे कि मुर्शिद कुली खान, उनके बाद अलीवर्दी खान, अलीवर्दी के बाद सिराज उद्दौला। ये तीनों ही नवाब ने अगेंस्ट यानी कि अपोज हुए ब्रिटिशर के कि आप ट्रेड करो उसके ऊपर टैक्स करो। पर मेजर बैटल हुई बैटल ऑफ प्लासी इन ईयर 1756 जब सिराजुद्दौला नवाब बने, यानी फर्स्ट ब्रिटिश बैटल विद Bengal Nawab, or we can say with Indian, was the Battle of Plassey in 1756. Sirajuddaulah जब नवाब बने in year 1756, he was not at all happy with the British rule. British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiracy against him so that he could not remain on the throne of Bengal. ब्रिटिशर को भी पता चल रहा कि ये नवाब काफ़ी अपोज कर रहे, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि सिराजुद्दौला के जो एनिमीज है उसको उन्होंने अपने साइड कर दिया और कैसे भी करके सिराजुद्दौला को वीक करें। सिराजुद्दौला ने सबसे पहले ब्रिटिशर के साथ नेगोशिएट किया। उन्होंने ऐसे बोला कि आप अपने फौज को फोर्टिफाई नहीं करोगे, आपको टैक्स अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन पे करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड करना है। पर ब्रिटिशर एग्री नहीं हुए और उन्होंने ट्रेड कंटिन्यू ही किया। सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया और उन्होंने ब्रिटिश का जो फोर्ट था कैलीकट उसको डिमोलिश कर दिया। तब ब्रिटिश आर्मी के लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव। व्हेन ही केम टू नो कि सिराजुद्दौला ने उनकी कैलीकट के फोर्ट को डिमोलिश कर दिया, तो उन्होंने एक आर्मी खड़ी की और सिराजुद्दौला को बोला कि अब हम बैटल करेंगे, द ब्रिटिश काउंटर अटैक, जिसके लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो एक काउंटर अटैक हुआ और ये जो बैटल हुई वो बैटल हुई थी नियर पलाश, यानी कि द ओरिजिनल नेम इज प्लासी, जहाँ पे एक पलाश ट्री होता है, यानी कि वो होता है फ्लावर्स ऑफ पलाश ट्री, वो सैफरन कलर का होता है और उसको होली के कलर्स बनाने में काम होता है, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला गया है। क्लाइव ब्राइव्ड मीर जफर, सिराजुद्दौला के आर्मी के कमांडर ऑफ चीफ थे मीर जफर, उनको उन्होंने ब्राइब किया और उनको बोला कि जब ये बैटल होगी उस दिन आप नहीं आना, हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, मार डालेंगे और आपको बंगाल के नवाब बना देंगे। और ऐसा ही हुआ, मीर जफर डिडंट टर्न आउट, सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड ब्रिटिशर वोन द बैटल। तो हम बोल सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी is the beginning of their ruling in India. अब मीर जफर को as promised नवाब बनाया गया, बट अगेन ब्रिटिशर वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उन्हें ऐसा नवाब चाहिए था जो उनका पपेट हो, जो उनके इशारों पे काम करे। अगेन मीर जफर वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी दैट ब्रिटिशर आर नॉट पेइंग टैक्स। ड्यूटी फ्री ट्रेड करने से बंगाल के रेवेन्यू में रिडक्शन हो रहा था, तो ब्रिटिशर ने सोचा कि अब हम उसके रिप्लेस लाते, यानी कि मीर जफर को निकाल देते और दूसरे नवाब को यहाँ पे ला देते। तो मीर जफर के सन इन लॉ मीर कासिम को ही नवाब बनाया। अब मीर कासिम भी एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर था, वो भी ब्रिटिशर के इशारों के हिसाब से नहीं चल रहा था, यानी अगेन ही वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग एज अ पपेट ऑफ ब्रिटिशर। ब्रिटिशर वॉज नॉट अगेन हैप्पी। मीर कासिम अगेन डिमांडेड फॉर द टैक्स। मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में एक बैटल हुई 1763, छोटी बैटल हुई जिसमें मीर कासिम
डिफीट हो गए और वो बच के भाग गए। बच के भागने के बाद उन्होंने 3 दूसरे रूलर के साथ, एक बड़ी आर्मी के साथ ब्रिटिशर के सामने एक वॉर किया। नवाब ऑफ अवध, सौजदुल्ला, मुगल एम्परर शाह आलम 2, इन 3 के साथ। और ये जो बैटल हुई वो थी बैटल ऑफ बक्सर इन ईयर 1764। यानी ये बैटल हुई मीर कासिम और ब्रिटिशर के साथ, जिसमें ऑफ कोर्स मीर कासिम हार गए और ब्रिटिशर ये बैटल भी जीत गए। पर इसके बाद ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि वो कोई भी इंडियन को नवाब नहीं बनाएंगे, पर वो खुद ही नवाब बनेंगे और रॉबर्ट क्लाइव को नवाब बनाया गया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो एक पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे इंडिया में हो गई, जो यहाँ पे ट्रेड करने आई थी, ये 2 वॉर के बाद उन्होंने धीरे धीरे किंगडम्स कॉन्कर किए। उन्हें पता चला कि ट्रेड से जो प्रॉफिट मिलता है, पर यहाँ सबसे ज़्यादा गेन उनको रेवेन्यू से मिलता है। और धीरे धीरे उन्होंने सारे किंगडम को कॉन्कर किया। और इस तरह से इस चैप्टर में वी कम टू नो दैट हाउ दे came here to do trading and how they became the super power. So in this chapter we finished the main points. These are the main dates which you have to learn. So the chapter is over of your textbook, First Arrival of Europeans in India.